فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ گورنمنٹ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے 114 سال قدیم عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے لیے نئی عمارت کی تعمیر کا مطالبہ کیا۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ بی ناگیندر نے کہا ہے کہ عثمانیہ دواخانے کو ایک نئی عمارت کی ضرورت ہے۔ ہر مریض، ڈاکٹر، عملہ اور طالب علم ایک ایسی عمارت چاہتے ہیں جو MC کے معیار کے مطابق ہو اور مریضوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہمیں ایک جدید ترین ہاسپٹل کی ضرورت ہے جہاں غریب مریضوں کو مناسب سہولیات فراہم کی جائیں۔ دیکھ بھال اور علاج کا ایک اور پہلو ہے اور جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں کوئی مناسب ڈیمونسٹریشن روم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان مطالبات کا مقصد ہاسپٹل کو کارپوریٹ ہاسپٹل کے مماثل بنانا ہے۔ پروفیسر کودنڈارام نے کہا اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ موجودہ ڈھانچے کو منہدم کرنے کے حق میں ہیں یا اس کے خلاف ہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپتال کو مجوزہ جگہوں میں سے کسی ایک پر منتقل کیا جانا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نمائندگی حکومت کو پیش کریں اور حکام کو ہاسپٹل کی قسمت کا فیصلہ کرنے دیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر کے مہیش نے کہا کہ یہ مسئلہ 2010 کا ہے جب اس وقت کے چیف منسٹر کے روشیا نے ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے 200 کروڑ روپے کی منظوری دی تھی اور ایک G+4 عمارت کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ تلنگانہ کے راجنا سرسلہ ضلع کے SP اکھل مہاجن نے بائکس کے سائلنسر تبدیل کرنے پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ گزشتہ ماہ پولیس نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سائلنسرز کو تبدیل کرنے والی بائکس کے مالکین کے خلاف خصوصی مہم چلائی۔ ضلع میں اس کارروائی کے دوران ضبط 86 بائکس کے سائلنسرز کو روڈ رولر کے ذریعے تلف کر دیا گیا۔ اس موقع پر SP اکھل مہاجن نے کہا کہ صوتی آلودگی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ شور کرنے والی بائکس پر خصوصی توجہ دی جا رہی۔ اس کے تحت ضلع بھر میں بڑے پیمانے پر مہم چلائی جا رہی۔ انہوں نے بائکس کے ذمہ داروں کو مشورہ دیا کہ وہ صرف کمپنی کی طرف سے فراہم کردہ سائلنسر کا ہی استعمال کریں۔ سائلنسرز تبدیل کرنے اور صوتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کانگریس لیڈر وجے شانتی نے یوم تاسیس تلنگانہ کی بڑے پیمانے پر منائی جانے والی تقریب میں سابق صدر کانگریس سونیا گاندھی کو مدعو کیے جانے پر مرکزی وزیر سیاحت و تلنگانہ BJP کے سربراہ کشن ریڈی کی جانب سے کیے گئے اعتراض کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP کو کانگریس پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سونیا گاندھی اس پروگرام کے لیے اہل ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ریاست کی تشکیل میں BJP کا رول کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے جہدکار ہمیشہ سونیا گاندھی کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے تلنگانہ کی تشکیل کو یقینی بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو سیاسی نقصان ہونے کے باوجود تلنگانہ کی تشکیل کو یقینی بنایا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کشن ریڈی کو کانگریس سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس تقاریب کے انتظامات کا میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے معائنہ کیا۔ انہوں نے یہ پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں منعقد کی جانے والی تقریب کے سلسلے میں عہدیداروں کو کئی تجاویز بھی پیش کی۔ میئر نے تمام محکمہ جات کے عہدیداروں کو تجویز پیش کی کہ وہ آپس میں تعاون اور تال میل کے ساتھ کام کریں تاکہ اس تقریب کو کامیاب بنایا جا سکے۔ میئر نے اسٹیج کے انتظامات، بیریگیٹنگ، بجلی، صاف پینے کے پانی کی فراہمی، مائک سسٹم اور LED اسکرین کی تفصیلات حاصل کی۔ انہوں نے عہدیداروں سے ٹریفک میں خلل ڈالے بغیر پارکنگ کے انتظامات اور VIP ٹریفک میں خلل ڈالے بغیر کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں استفسارات کیے۔ اس تقریب کے لیے کانگریس کے سابق صدر سونیا گاندھی کو مدعو کیا گیا ہے جن کی کوششوں سے تلنگانہ کو UPA کے دور میں ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔ اس موقع پر امبرپیٹ کانگریس انچارج ڈاکٹر روہینہ ریڈی، MLC وینکٹ، ڈپٹی میئر متے سریلتا شوبھن ریڈی، لنگوجی گوڑا کارپوریٹر راج شیکھر اور دوسرے موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے JD میٹلا کے گاجولا رامم میں جنگلی بلی کے نظر آنے پر مقامی افراد میں خوف دیکھا گیا۔ یہ جانور گاجولا رامارم کے قیصر نگر میں دیکھا گیا جس کے بعد مقامی افراد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ علاقے میں تیندوا گھوم رہا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے اس سلسلے میں مقامی افراد سے بات کی اور محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو چوکس کیا۔ بعد ازاں محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی ٹیم وہاں پہنچ گئی جس نے اس بلی کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ اس بلی کو بعد ازاں جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا۔
आंध्र प्रदेश के जिले आनंदपुर में एक रीछ ने हलचल मचा दी। जिले के उनताकल देहात में अचानक ये रीछ नजर आया। इसको दरख्त पर देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि इन दिनों पानी के लिए अक्सर जानवर इंसानी आबादियों में घुस आते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इस खसूस में महकमे जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया गया, जिसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि जंगली जानवरों को गाँव में दाखिल होने से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। आंध्र प्रदेश में मसरूफ इंतखाबी सरगर्मियों के बाद अमेरिका में तातीलात गुजारने वाले तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद वापस हो गए। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर उनकी आमद पर तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई, जिन्होंने तेलुगु देशम सरबराह का इस्तकबाल किया। चंद्रबाबू आराम करने की गर्ज से इस माह की 19 तारीख को अमेरिका गए हुए थे। बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उनके राम भक्त और राम मुखालिफ वाले बयान पर सख्त जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राम राज्य के लिए बेहतर है बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई को दूर करना, गरीबी को दूर करना। सिर्फ राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनकी तालीमात पर अमल भी करना होगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बिहार में एक रैली में कहा था कि ये इंतखाब राम मुखालिफ और राम भक्तों के दरमियान है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मुल्क में कौन राम भक्त नहीं है। हम दूरदर्शन के वक्त से ही रामायण देख रहे हैं। हमारे घर में राम है, हमारे घर में एक मंदिर है, लेकिन राम राज्य के लिए बेहतर है बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई को दूर करना, गरीबी को दूर करना। सिर्फ राम का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनकी तालीमात पर अमल भी करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के स्कॉलर शर्जिल इमाम को 2020 के फिरका वाराना फसादात के एक मुकदमे में जमानत दे दी, जिसमें बगावत और गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जामात शामिल हैं। ये जमानत जस्टिस सुरेश कुमार केत और मनोज जैन की बेंच ने दी थी। शर्जिल इमाम को दिल्ली फसादात के दौरान दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के इल्जाम में बगावत और UAPA केस में गिरफ्तार किया गया था। शर्जिल इमाम ने इस बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त की थी कि वो 7 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा का निस्फ काट चुके हैं। ये मुकदमा AMU और जामिया इहाते में दिए गए मुबैना इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुत्तलिक है। दिल्ली के जामिया इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के लिए बगावत के इल्जाम में और UAPA केस में उन्हें जेल भेज दिया गया था। जमानत मिलने के बावजूद शर्जिल इमाम दिल्ली फसादात की साजिश केस में दीगर इल्जामात में जेल में ही रहेंगे। राजधानी दिल्ली में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और तारीख में पहली बार दर्ज हरारत 52 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के इलाके मंगेशपुर में दोपहर 2:30 बजे 52.3 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने यौमिया मौसम की बहस में कहा कि शुमाल मगरबी और वसत हिंदुस्तान में गर्मी की लहर से लेकर शदीद गर्मी की लहर तक के हालात 30 मई से बतदरीज कम होने का इम्कान। 31 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर से लेकर शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। इसके अलावा मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की लहर का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 1 जून 2024 को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी की लहर के हालात का इम्कान है। ताहम गर्मी की लहर के असर में कमी हो सकती है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब।
जनूबी एशिया समेत दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी इन दिनों शदीद गर्मी की लहर जारी है। सऊदी मरकज मौसमियात के मुताबिक सऊदी अरब में 1 जून से दर्ज हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। सऊदी मरकज मौसमियात का कहना है कि शदीद धूप में कारकुनों से काम ना लेने की हिदायत की गई है। मरकजी मौसमियात के मुताबिक इस साल वसते और मशरकी इलाके में दर्ज हरारत 48 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसराइली फौज ने गजा के जुनूबी शहर रफा पर फिर से हमला किया है। हमास के खिलाफ अपनी जारहाना जंग में शहरियों की हलाकतों पर बढ़ती हुई तशवीश के बावजूद इसराइल ने अपने जंगी इक़दामात में तब्दीली का कोई इशारा नहीं दिया, जिससे जंग बंदी को यकीनी बनाने की बैनुल अक़वामी कोशिशों में रुकावट पैदा हो रही। मीडिया ने सुबह रफा में इसराइली फौज की तरफ से नए हमलों की इतला दी। चंद घंटे बाद ऐनी शाहिदीन और फलस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इसराइली टैंक शहर के वसत में दाखिल हो गए। एक मुकामी शहरी अब्दुल खतीब ने कहा है कि लोग इस वक्त अपने ठिकानों के अंदर छुप चुके हैं, क्योंकि जो भी आमद व रफ्त करता है उसे इसराइली ड्रोन से गोली मार देते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।